We have start with the unit 3. There is a topic named as C++ inheritance. This is the syllabus of unit 3. Under this, we have to study inheritance and operator overloading. In inheritance, we will cover the topics like what is inheritance, characteristics of inheritance, need of inheritance. Uske baad types of inheritance. We have 5 types of inheritance: single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, or hybrid inheritance. So total we have 5 types of inheritance. Next topic of your syllabus is, it's completely regarding operator overloading. In this we will cover operator overloading. How can we overload a unary and binary operators? What are the various rules for overloading the operators? So today's name of the topic is inheritance only. So C++ inheritance, as we know all that, inheritance is what? It has 2 classes. One is parent class, which is called superclass. And second is, to parent class, it is also called parent class, base class, or superclass. And the second class is child class. Child class or child class or derived class. Yes. Derived class. It is called child class, derived class, or subclass. ठीक है? Parent class is called superclass, whereas child class is called subclass. So in inheritance, there is a process of parent-child relationship between 2 classes. There is a one parent class and second is a child class. So this is main about inheritance. Second question is that why we are using inheritance in C++? कि आप C++ में inheritance क्यों use कर रहे हो? If it is not present in C, then why it is introduced in C++? अगर C में नहीं था तो C++ में क्या benefit है इसका? तो main क्या benefit है inheritance को use करने का? क्या बताया था मैंने आपको? कोड रीयूजेबल में. Very good. Code reusability. Code reusability is one of the greatest characteristics of inheritance. Code reusability is one of the reason why we are using inheritance. Code reusability means the common characteristics of parent class is directly inherited by child class. इसका मतलब है कि कुछ common characteristics जो पेरेंट क्लास की है वो सीधी जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट करेगा. दोबारा अपना टाइम वो सेम जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो सेम फंक्शनिंग है, उसको लिखने में वेस्ट नहीं करेगा. इट सिंपली इनहेरिट द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स. जैसे हम रियल लाइफ की बात करें, इन अ रियल लाइफ आपको व्हेन यू टेक अ बर्थ तो आपको होम मतलब हाउस आपको एज इट इज मिलेगा. हम डायरेक्टली पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. नेम हम डायरेक्टली पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. हाँ, अब बीइंग अ चाइल्ड क्लास आपकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है, लाइक आपकी डिफरेंट स्किल्स हो सकती हैं. मे बी योर पेरेंट मे बी एजुकेशनल और नॉट एजुकेशनल. आप अपनी करेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंट कर सकते हो. लाइक आपकी एज अलग है, पेरेंट्स की एज अलग है. आपका जो एजुकेशनल स्किल्स है वो अलग है, पेरेंट्स की एजुकेशनल स्किल्स अलग है. तो ऐसा नहीं है कि इनहेरिटेंस में सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम पेरेंट्स से ही लेंगे. नो, वी कैन ओनली इनहेरिट द कॉमन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पेरेंट क्लास. Whereas जो ड्राइव्ड क्लास है उसकी अपनी भी फंक्शनिंग है, अपनी भी प्रॉपर्टीज है. तो मेन जो रीजन है, द मेन रीजन बिहाइंड यूजिंग इनहेरिटेंस इज ओनली अ कोड रीयूजेबिलिटी. क्लियर? यस मैम. उसके बाद we have done with this. There is a one parent class that is called base class or super class. Second is child class that is called derived class and subclass. मेन इसका जो पर्पस है that is called code reusability. जैसे let us suppose कि पेरेंट क्लास है एक, उसमें फंक्शन है ऐड फंक्शन में उसकी फंक्शन की बॉडी में हमने पूरी वर्किंग को एक्सप्लेन कर दिया कि ऐड में वी विल टेक इधर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर. आप उसको यूजर से इनपुट करवाओगे, देन उन नंबर्स को ऐड करोगे. अब एक दूसरी क्लास आ गई चाइल्ड क्लास. अब चाइल्ड क्लास को भी सेम वही ऐड फंक्शन चाहिए.
तो आपको क्या लगता है कि हम पेरेंट से इनहेरिट कर लें कि दोबारा सेम उतनी कोडिंग दोबारा चाइल्ड में लिखे? व्हाट इज द गुड प्रैक्टिस? पेरेंट से इनहेरिट कर लेंगे। वेरी गुड। तो हमने पेरेंट से क्या किया? इनहेरिट किया। इसका मतलब है कोड सिर्फ और सिर्फ पेरेंट। शाबाश। तो कोड सिर्फ और सिर्फ पहले पेरेंट में था, मैंने चाइल्ड में सीधा उसको क्या किया? रीयूज। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि देयर इज अ वन फंक्शन इन अ चाइल्ड क्लास स्वैप. स्वैप फंक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास. नाउ टेल मी कि स्वैप को हम रीयूज करेंगे कि चाइल्ड क्लास में उसकी कोडिंग को लिखेंगे? कोडिंग को लिखेंगे मैम, रीयूज क्योंकि वो बेस क्लास में प्रेजेंट नहीं है। वेरी गुड। सो स्वैप फंक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पेरेंट क्लास से ऐड इनहेरिट कर रहे हैं तो मैं ऐड के अलावा कोई और फंक्शन ही नहीं यूज करूंगी। इनहेरिटेंस का मतलब है यू कैन इनहेरिट द बेसिक प्रॉपर्टीज, कॉमन हम उसके फीचर्स को ग्रैब करेंगे। जैसे ऐड इज ऑल्सो इन अ पेरेंट क्लास एंड वी नीड ऐड इन द चाइल्ड क्लास ऑल्सो. तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द सेम कोड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड, हम डायरेक्टली उसको पेरेंट से इनहेरिट कर देंगे. अब चाइल्ड क्लास को कोई और फंक्शंस भी तो चाहिए ना. इट में इधर स्वैप कर लो, मल्टीप्लाई का फंक्शन चाहिए, फैक्टोरियल का फंक्शन चाहिए. तो चाइल्ड क्लास अपने फंक्शंस भी लिख सकती है और कॉमन फंक्शन को पेरेंट से इनहेरिट कर लेगी. इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है. एडवांटेजेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मेन एडवांटेज है कोड रीयूजेबिलिटी. तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम टू राइट द सेम कोड again and again, we simply inherit the common code from the parent class and reuse it into child class. Fine. जो कॉमन कोड होगा, जो कॉमन प्रॉपर्टीज होगी, बार बार हम उसको लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा चाइल्ड क्लास से इनहेरिट करेंगे कोड को और रीयूज कर लेंगे. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग C++. क्लियर है अब तुम्हें शहजाद? यस मैम. गुड. Now come to types of inheritance. We have a 5 type of inheritance: single level inheritance, multiple inheritance, hierarchical inheritance, multi-level inheritance, and last one is hybrid inheritance. Very good. Hybrid inheritance. So we have two classes in the inheritance: parent class and child class. So derived class means child class or subclass. Here is the syntax how to write that derived class. कि आपने derived class लिखनी कैसे है? Class is the name of the keyword. तो class को as it is class ही लिखोगे. Derived class name, this is the name of the derived class. जो भी आप child class का नाम लिखोगे वो वहां पे आएगा. उसके आगे it's only a colon, not any special operator, it's only a colon. ठीक है. Next we have a visibility mode. Visibility modes means एक्सेस स्पेसिफायर. कौन से हमारे पास? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. वेरी गुड. तो विजिबिलिटी मोड्स मींस एक्सेस स्पेसिफायर्स. तो आप डिफाइन करोगे कि विच टाइप ऑफ विजिबिलिटी मोड यू वांट टू यूज टू एक्सेस योर बेस क्लास. तो आप किस मोड के थ्रू बेस क्लास को एक्सेस करना चाहते हो? प्राइवेट चाहिए आपको बेस क्लास की एक्सेसिबिलिटी, पब्लिक चाहिए आपको बेस क्लास की एक्सेसिबिलिटी, जहां प्रोटेक्टेड चाहिए. ठीक है. उसके बाद सिंटेक्स लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट में यू जस्ट नीड टू राइट डाउन द कोडिंग और बॉडी ऑफ ड्राइव्ड क्लास. उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दो. किसी को प्रॉब्लम इसमें सिंटेक्स में? नो मैम. वेरी गुड. विजिबिलिटी मोड्स पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. वी हैव अ 3 विजिबिलिटी मोड: पब्लिक, प्राइवेट एंड protected. Next is, now first type of inheritance is single inheritance. Now tell me what is single inheritance? One subclass and one derived class. Very good. Single inheritance is the type of inheritance in which there is a one parent class and only one derived class, जिसमें एक ही चाइल्ड क्लास और ड्राइव्ड क्लास. तो सिंगल इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस है जिसमें एक ही पेरेंट क्लास है और उस पेरेंट क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक ही चाइल्ड क्लास है और ड्राइव्ड क्लास है.
This is the example. Class A is the parent class, base class, और उसकी child class A की है, that is called class B. Fine? Yes, ma'am. तो class A is the parent class, base class और super class. Class B is the derived class, child class और sub class. Sub class. Diagram में किसी को कोई problem? No, ma'am. Now see the working. इसकी वर्किंग देखो, हेडर फाइल्स लगा दिया आपने iostream.h, conio.h. What is the name of the parent class? Parent class का क्या? School. Parent name of the parent class is school. In parent class we are using access specifier. Parent class में हम कौन सा access specifier यूज कर रहे हैं? Public. और उसमें जो नेम और आईडी लिखा है वो दोनों क्या है? व्हाट इज नेम और आईडी? डेटा मेंबर मैम. वेरी गुड. एक सेकंड. चेंज इट. इंट एज. आई हैव ऑलरेडी डन द चेंज. यस मैम. माय एज इज 29. String int n Int is equal to this, and age. It will only in a number. No need to use string. Let us suppose my age is 23. Next is my age is 24. Now see, this is the program of single level inheritance. Header files import कर दी, iostream.h, conio.h. Name of the base class is school. We are using the access specifier public, and it has two data members, age and id. Clear सबको? Next, what is the name of the member function? Yes, ma'am. What is the name of member function? Display. Void display. In void display, we are showing two outputs. First is my age is age variable में show होगी. My ID is आपने ID में show करवा दी. First bracket void display को close कर रही है. उसके बाद ब्रैकेट के बाद अगर आप सेमीकोलन डालोगे, इट मींस वी आर डूइंग. व्हाई वी नीड टू पुट द सेमीकोलन? क्लास खत्म हो गया. यस, इसका मतलब है क्लास खत्म होगी. तो पब्लिक क्लास क्लोज. वेरी गुड. तो बेस क्लास को हमने क्लोज कर दिया. नाउ कम टू ड्राइव्ड क्लास. इनहेरिटेंस है ना, तो इनहेरिटेंस के केस में क्लास इज द नेम ऑफ द कीवर्ड. एज इट इज लिखोगे क्लास को क्लास. Now tell me, what is the name of the derived class? Student. Colons. Public. Student. उसके बाद colons. Now see public. In this case, what is public? It is a visibility mode, right? Specifier. Access. Yes, access specifier or visibility mode. Next is name of the base class school. इसका मतलब है कि मैंने एक ड्राइव क्लास बना दी जिसका नाम है स्टूडेंट, और वो बेस क्लास स्कूल को एक्सेस करेगी वाया पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर. ठीक है? नाउ इन स्टूडेंट क्लास के पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में, नाउ दिस इज व्हाट, जो स्टूडेंट लिखा है ये क्या है? के बाद के बीच में स्पेस होगा. हाँ, यस. पब्लिक में जो स्टूडेंट है, दिस इज व्हाट, क्लास का नेम है, ड्राइव क्लास का नेम है. लेकिन इसको C++ में क्या बोलते हैं? इफ द नेम ऑफ द क्लास कहते हैं कंस्ट्रक्टर कहते हैं. कंस्ट्रक्टर. very good. Constructor. If the name of the class and the name of the member function is same, then it is called. Now tell me, it's default constructor or parameterized? Parameter constructor. Yes, parameterized.
because we are going to pass Parameterized constructor. because here is a two parameters. Int n is for age, int I is for id. दोनों पैरामीटर की डेटा टाइप int है because age is declared as an integer variable, id is declared as a integer variable. So age is equal to n, id is equal to I, then we are closing the bracket. जो लास्ट में ब्रैकेट के पीछे सेमीकोलन है, it means हमने जो ड्राइव्ड क्लास है उसको क्लोज कर दिया है. ठीक है, now क्लोज come, कर दिया. yes, now come to the main function, void main, curly bracket open. Now this student is the name of the class, s1 is the object and it is a parameterized. तो first is age, second is id. तो age के corresponding we are passing the value 23 और id के corresponding we are passing the value 1. Again इस program में we have created two objects. Student class, second object is s2, age की वैल्यू आपने पास की 24, id की वैल्यू पास की 2. s1 डॉट डिस्प्ले को कॉल करोगे तो age की क्या आउटपुट आएगी? 23 और 23 और id 23 मैम आएगा. और id क्या आएगी? 1. अगर One. s2 गुड One आएगा. s2 डॉट डिस्प्ले से कॉल करोगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एज? मैम 24 और id 2. then get ch, then curly bracket close. सिंगल इनहेरिटेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. Clear to all? Yes ma'am. Good, very good. Next is multi-level. It means we have more than one level of inheritance. That is called multi-level inheritance. Multi-level inheritance is also a type of inheritance in which we have more than one levels. That's why it is called multi-level inheritance. Now see, this is the multi-level inheritance. Parent class is BCA. अब BCA parent class have child class BCA1. So BCA is the name of the parent class. First is BCA class. BCA1 is the derived class. BCA class Yes ma'am. parent class है. अब BCA class की child class कौन सी है? BCA1. BCA1. ठीक है, लेकिन अब BCA2 एक और लेवल है ना हमारे पास, BCA2. BCA2 क्लास का पेरेंट क्लास कौन सी है? Yes ma'am. BCA1. और BCA1 का चाइल्ड क्लास कौन सी है? Yes ma'am. BCA2. BCA1 class. BCA2. BCA2 वेरी गुड. तो एक से ज्यादा लेवल आगे ना. BCA is the parent class. BCA1 is the child class of BCA, whereas BCA1 is the parent class of BCA2 and BCA2 is the child class of BCA1. Diagram is clear to all? Yes ma'am. Yes, ma'am. Now see the program. It is the program of multi-level inheritance. Header files import कर दी. एक class बनाई BCA, that is the parent class. In BCA class, we have one data member. क्या नाम है data member का? Int A. And we have one member function, that is void input. In member function, message print किया. Yes, message print किया, enter the value of A. आपने उस इनपुट करवाई A की वैल्यू. उसी में ही आपने शो फंक्शन लगा दिया. मतलब इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस बोथ आर यूज्ड ओवर देयर. void शो में जो भी आप A की इनपुट करवाओगे वैल्यू, दैट विल बी डिस्प्लेड. उसके बाद आपने लास्ट में पेरेंट क्लास जो BCA है उसको क्लोज कर दिया. फाइन. Yes ma'am. नेक्स्ट है, अब मल्टी लेवल है, तो वी हैव मोर देन वन लेवल ऑफ इनहेरिटेंस. नाउ कम टू क्लास BCA1. BCA1 class is the child class of BCA. So BCA1 have a public access specifier. BCA1 has a one data member, that is B. BCA1 class have input function, that is input1. Under the input1 function,
we will get the value of b from the user. पहले मैसेज आएगा कि enter the value of b, तो फिर वो यूजर जो भी b की वैल्यू होगी वो एंटर करेगा. Then we have show function. See the previous show is already used in BCA class, तो we will not use the same name. तो हमने क्या यूज किया, show one. शो वन फंक्शन में आप b की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दोगे जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा, और एट द एंड हमने BCA1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. ठीक है? Yes. Yes, ma'am. Clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now come to class BCA2. BCA2. BCA2 is the child class of which class? BCA2 का पेरेंट कौन है? BCA1. BCA1. BCA2 class में under access specifier public we declared one variable c and we have a input function जिसका नाम रखा input2. उसमें we are getting the value of c, और in BCA2 class there is a one output function जिसका नाम है void show2, और शो में आपने जो भी c की वैल्यू यूजर ने एंटर की है उसको क्या करवा दिया, डिस्प्ले, और एट द एंड BCA2 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम टिल दिस स्लाइड? No, ma'am. Now come to the main function. Here always remember one thing, we had to create the object of the last derived class. जो आपके inheritance में सबसे last derived class होती है हम उसके object create करते हैं. तो in case of multi level inheritance सबसे last child class कौन सी है, BCA, BCA1 या BCA2? BCA2. BCA2. तो BCA2 के ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है m. अब ध्यान से देखो, m डॉट इनपुट, जब आप m डॉट इनपुट फंक्शन चलाओगे तो फिर कहां पे हम जाएंगे, m डॉट इनपुट. m डॉट इनपुट मतलब सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ a, तो हम a की वैल्यू एंटर करवाएंगे. अब अगर हम कॉल करेंगे m डॉट शो तो a की वैल्यू डिस्प्ले होगी. ठीक है? उसके बाद m डॉट इनपुट वन फंक्शन में हम b की वैल्यू एंटर करवाएंगे. m डॉट शो वन में वी आर डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ b. थर्ड इज m डॉट इनपुट टू फंक्शन में we are getting the value of c, and by using m dot show to function we are going to display the value of c. So by using m object we are getting the value of a and showing it, we are getting the value of b and displaying it, we are getting the value of c and displaying it. Clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ठीक है. Now come to third type of inheritance, that is called multiple inheritance. Multiple inheritance is the feature of C++ where a class can inherit from more than one classes. That is, one subclass is inherited from more than one base class. It means child class have more than one parent class. Clear? Like this, a child class is derived from more than one parent class. See, in multiple inheritance we have more than one parent class and there is only a single child class. Inheritance. See, one parent class, one class है, there is one class named as father, and second class is mother.
One class is named as father class and second class named as mother class. Mother. See, multiple inheritance. Multiple inheritance means a single class is derived from more than one parent class. Clear? Yes, ma'am. Like child is derived from two classes. One is father and second is Mother. mother. So multiple inheritance is a such type of inheritance when a single class is derived from more than one base classes. So in this case, child is a derived class, whereas it is derived from two parent class. One is father class and second is mother class. Anybody have any doubt in the diagram? No, ma'am. So always remember, multiple inheritance is a such type of inheritance in which a derived class is inherited from more than one base class. For example, in this case, one base class is a father class, second base class is a mother class, and in this diagram, we have only one child or derived class whose name is child class. Clear to all? Clear to all? Yes, ma'am. Good. Now write down the heading. Write a program to show the working of program to show the working of program to show the working of multiple inheritance. Inheritance. First, add up the header files. Hash include iostream.h, hash include conio.h, conio.h. Then, what is the name of the parent class? BCA. Father. Father. The name of the parent class is father. In the parent class father, under the access specifier public, we have one member function void display. Void display. एक second. इसमें सिंपल मैसेज शो करवा दो, सी आउट फादर ऑफ चाइल्ड क्लास. ठीक है, सिंपल मैसेज करवाया फादर ऑफ चाइल्ड क्लास, क्लोज द करली ब्रैकेट ऑफ void display function, close the parent class. Any problem in this? No, ma'am. Any problem to anyone? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Next class is mother class, right? Yes, ma'am. There are two base class. So you just need to declare first two base classes. After declaring the base class, हम drive class को declare करेंगे. Second base class है mother. Under the public access specifier, use the function void display 1
Simply show the message mother of child class. Mother of child class. Close the bracket of void display member function. Close the mother class. Any problem, any doubt? No ma'am. नेक्स्ट क्या करें अब? दोनों बेस क्लासेस डिक्लेयर कर ली. नेक्स्ट Child class. Child class ma'am. I am using different slides due to the size of the text. Make it sure कि आप सारा प्रोग्राम कंटिन्यूटी में एक ही पेज पे लिखोगे कॉपी पे. ठीक है? Okay ma'am. Okay ma'am. Yes ma'am. मैम वो प्रीवियस स्लाइड करेक्ट. Sure. Done? Yes ma'am. Okay. Done ma'am. Okay. Now we have to declare a child class or derived class. What is the name of the derived class? Ma'am, child. Child. Class is the name of keyword, तो as it is लिखोगे. Derived class का name है child. CHILD. Now see very carefully. Child class is inheriting from how many base classes? हम child class को कितनी base classes से inherit कर रहे हैं? हम दो से. कौन सी? फादर मदर. मदर एंड फादर. फादर एंड मदर, मदर एंड फादर. ठीक है, तो सी कैसे लिखते हैं? पब्लिक, पहली बेस क्लास है फादर, कॉमा पब्लिक, दूसरी बेस क्लास है मदर. ठीक है? यस मैम. Now we are inheriting one child class from two parent class. One parent class is father and second parent class is mother class. Mother. उसके बाद write down the working or body of child class. In child class, under the access specifier public, we will use one display function whose name is display2 and show the message cout. It's simply a message. You can write down any message over there. Child is inherited from father and mother class. Close the bracket of display function, close the derived class. Anyone have doubt? No ma'am. It's a very simple syntax. Class is the keyword as it is. Child is the name of the derived class. So child class is inherited from two parent class. One is father and second is mother. We are accessing or inheriting both parent class via the access specifier public. हम दोनों जो parent classes हैं उसको public access specifier के through access कर रहे हैं. Child class का एक अपना member function है that is called void display2. कोई message print करवाना है, मैंने message लिख दिया कि child is inherited from father and mother class. Clear? Yes ma'am. Now come to void main. Void main. Now tell me, किस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं? क्या लिखूं नेम ऑफ द क्लास? चाइल्ड मैम. चाइल्ड. एक्सीलेंट. चाइल्ड क्लास मैम. तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा सी. आप इसमें CLRSCR. Try to use a clear screen function. It's a good practice. C.display. When I will call the C.display function, what will be the output? The child, the father of child class. Good.
If I will write down C dot display 1, what will be the output? Mother of child class. Mother of child classes, ma'am. C dot display 2, what will be the output? Child inherited mother and father. Yes. From mother and father. Child is it's a message. You can write down any name of the message. It's not compulsory कि जो मैंने लिखा as it is a message लिखोगे. It's simply a message. Clear to all? Yes, ma'am. If anybody have any doubt, let me know. No, ma'am. मैम क्लियर स्क्रीन का यूज क्यों करते हैं हम लोग? क्लियर को स्क्रीन करने के लिए. To clear the screen. If you want कि previous output आपको ना show, कई बार क्या होता है कि we are implementing multiple programs. तो you just want to get the output of the current program, तो उस केस में हम clear screen use करते हैं कि जो previous जो मैंने पहले programs किए हैं उसकी output अब screen पे ना आए. तो कई बार क्या होता है कि आपने एक से ज्यादा program implement करोगे ना, you get confused कि what will be the output of which program, right? यस मैम, ऐसा होता है इसमें. हाँ, तो sometimes क्या होता है कि we forget कि what is the output of which program, so make it sure. तो मैम हर प्रोग्राम में हम लोग यूज कर सकते हैं ना, मतलब Yes. क्लियर स्क्रीन. void main के बाद कर सकते हैं मैम. Yes, void main के बाद. It's a good practice to use a clear screen function. It's a very good practice. ओके मैम. मैम क्लियर होता है ना कि हमारी आउटपुट कौन सी है. Yes, it's used to clear a screen. वो थोड़ी जो screen पे mess होती है, जहाँ जो थोड़ी वो coverage होती है, it's just used to clean that screen or clear that screen, nothing else. Okay. Now tell me, multiple inheritance is clear to everyone? Yes, ma'am. यस मैम. Hierarchical inheritance. In this type of inheritance, more than one subclass is inherited from a single base class. That is, more than one derived class is created from a single base class. Hierarchical is completely opposite to multiple. In case of multiple, we have two base class and one main Child class. child class. But in case of hierarchical, we have one base class or more than one child Parent class. class. No, hierarchical is completely opposite to multiple. In case of multiple, we have more than one base class or one child class. But in case of hierarchical, we have only one parent class and more than one child class. See the diagram. Hierarchical is completely opposite to multiple. In this, we have one base class or more than one child class, one base class and more than one child class. एक second.
This is hierarchical inheritance. In hierarchical inheritance, there is a one base class or more than one subclass. Subclass. But in case of multiple में क्या था? In case of multiple, we have more than one base class and there is only one subclass में. Subclass. So hierarchical is such type of inheritance in which we have one base class and we have more than one child classes or derived classes. Diagram clear to all? Yes, ma'am. ठीक है. हेडिंग लिखो, प्रोग्राम to show the working of hierarchical inheritance. Heading done. Write down the header files. Include iostream.h hash include onio.h. Now what is the name of the base class? What is BCA? BCA लेते हैं. Yes, BCA. Write down the access specifier public. Public में कोई भी मैसेज प्रिंट करवा दो. Void show cout. मैसेज मैंने करवाया. I am a student of BCA. Clear? Close the bracket of void function. Close the parent class BCA. Clear to all? Yes, ma'am. Next, there is only one parent class and more than one. एक parent class है और child class is more than one. तो सबसे पहले, now tell me what is the name of the child class? पहली child class कौन है? Ma'am, BCA1. Yes. Class BCA1. Visibility mode public. What is the name of the parent class? BCA1 का parent? BCA में. BCA. ठीक है. Now write down the access specifier public. BCA1 class has a one member function void display and print the message over there like I am a student of. क्या लिखूं? BCA class. BCA 1. हाँ, BCA 1. I'm a student of BCA 1 because we are writing down the body of derived class BCA 1. हम BCA 1 की कोडिंग कर रहे हैं. Void display की bracket close, BCA 1 class close. Clear? Yes, ma'am. उसके बाद second derived class कौन सी है? One is BCA 1 class. एक second. Class is BCA 2. What is the name of its parent class? BCA 1. BCA ma'am. BCA. BCA 1 होगा. BCA. No, BCA. BCA होगा मैम. BCA होगा मैम. Hierarchical से इनहेरिट कर रहे हैं. हाँ, hierarchical है ना कि multiple. It's not a multi-level की level पे level आएंगे. It's a hierarchical. It has only one parent class, that is BCA, and BCA parent class has two child. One is BCA 1 and second is BCA 2. BCA 2. तो BCA 2 जो पेरेंट है वो है BCA. BCA 2 और BCA 1 दोनों चाइल्ड क्लासेस है जिसका एक ही पेरेंट है BCA. BCA yes ma'am. It's up to you. You can change the name during coding. Public
और void display1 मैसेज शो करवाऊं, सी आउट I am a student of BCA2. Good. BCA2. Close bracket of display1, close the BCA2 class. Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Coding लिख ली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now come to void main. Void main. CLR क्लियर स्क्रीन। अब बताओ किस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, कितनी आपके पास चाइल्ड क्लासेस हैं? मैम चाइल्ड 2 मैम। तो दोनों के ऑब्जेक्ट, तो दोनों के ही create ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, ठीक है। इसमें कोई लेवल नहीं है कि हम देखेंगे कि सबसे लास्ट पे कौन सी क्लास चाइल्ड बनी। दोनों क्लास सेम लेवल पे चाइल्ड है ना? यस मैम, इसमें दोनों का क्रिएट करना है। यस, तो पहला BCA1 का ऑब्जेक्ट बना दो M और BCA2 का ऑब्जेक्ट बना दो N, ठीक है। पहले M डॉट शो, एक सेकेंड, M डॉट शो से कॉल करोगे तो क्या आउटपुट आएगी? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BCA1। BCA1 मैम शो किसका फंक्शन है, चेक करो किस क्लास का है। BCA का है। तो आउटपुट क्या आएगी? मैम आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BCA। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BCA, गुड। अगर हम कॉल करें M डॉट display1 तो क्या आउटपुट आएगी? मैम आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BCA1। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BCA1, गुड। अगर मैं कॉल करूं N डॉट शो तो व्हाट विल बी द आउटपुट? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BCA2। N डॉट शो फंक्शन देखो ना, N डॉट शो किस क्लास का फंक्शन है? मैम BCA2। मैम BCA का फंक्शन है। शो BCA का फंक्शन है। ऑब्जेक्ट्स ना देखो आपकी BCA1 का है कि BCA2 का, फंक्शन नेम देखो। शो किसका फंक्शन है? BCA का। मैम BCA। हाँ, तो अगर मैं N डॉट शो को कॉल करूंगी तो व्हाट विल बी द आउटपुट? ओ मैम आई एम ए BCA मैम। स्टूडेंट ऑफ BCA। गुड। अगर मैं कॉल करूंगी N डॉट डिस्प्ले 2, ओ सॉरी, पहला फंक्शन था डिस्प्ले और N अब है डिस्प्ले1। अगर मैं N के साथ डिस्प्ले1 कॉल करूंगी तो क्या आउटपुट आएगी? अच्छे से देखो। मैम आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BCA1। BCA1 ध्यान से देखो। मैम BCA2 जी मैम। BCA2 मैम। BCA2। M डॉट नाउ सी, हमारे पास दो चाइल्ड क्लासेस हैं। वन इज BCA1 जिसका ऑब्जेक्ट है M एंड सेकंड इज BCA2 जिसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? N। M डॉट शो से कॉल करोगे तो आउटपुट आएगी आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BCA। M डॉट डिस्प्ले से कॉल करोगे तो डिस्प्ले किस क्लास का फंक्शन है? BCA1 का कि BCA2 का? डिस्प्ले BCA1 का है मैम। BCA1 का है। और M किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? BCA1 का कि BCA2 का? BCA1 का। मैम BCA1 का M है। तो M BCA1 के ऑब्जेक्ट के साथ ही मैंने BCA1 का जो फंक्शन है डिस्प्ले उसको कॉल किया, ठीक है। यस मैम। N के साथ, M के साथ भी हम शो को कॉल कर चुके हैं और N के साथ भी हम शो को कॉल करेंगे, बिकॉज शो किस क्लास का फंक्शन है? BCA का मैम। और BCA1 और BCA2 दोनों चाइल्ड क्लासेस का पेरेंट कौन है? BCA। तो अब देखो, आपके चाहे जितने मर्जी भाई बहन हो, सबके पेरेंट तो सेम है ना? यस मैम। तो चाहे BCA1 है, चाहे BCA2 है, चाहे ऑब्जेक्ट M है, चाहे ऑब्जेक्ट N है, लेकिन दोनों अपने पेरेंट को कॉल कर सकते हैं ना BCA के मेंबर फंक्शन को। यस मैम। तो M डॉट शो से कॉल करवाया, N डॉट शो से कॉल करवाया। अब नेक्स्ट है डिस्प्ले1। डिस्प्ले1 किस क्लास का फंक्शन है?
BCA2 का मैम। और BCA2 का, और n किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? BCA2 का। BCA2 का। तो इसका मतलब है हमने क्या किया, BCA2 क्लास के ऑब्जेक्ट n के साथ BCA2 क्लास का जो मेंबर फंक्शन display1 है उसको कॉल करवा दिया। ठीक है, हाँ जी मैम। नेक्स्ट गेट ch। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। क्लियर टू है? यस बोलो मैम। ये वाला एक बार और थोड़ा रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं कर देती हूँ। सी कि हमारे पास था दिस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि वी हैव अ वन पेरेंट क्लास और एक पेरेंट क्लास के एक से ज्यादा चाइल्ड पॉसिबल है। एक चाइल्ड भी पॉसिबल है, एक से ज्यादा मतलब 2 भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब देयर इज नो एनी लिमिट। लेकिन चाइल्ड क्लास आपके कितनी भी पॉसिबल है, बट देयर इज ओनली अ वन पेरेंट क्लास। दिस इज द रूल, राइट? So in hierarchical inheritance there is only one single parent class and multiple child classes. तो हमारी डायग्राम में एक ही पेरेंट है, that is called BCA and it has two children BCA1 and BCA2. प्रोग्रामिंग देखो, हेडर फाइल्स लगा दी। हाँ जी यस बोलो। मल्टीपल वाले में भी तो एक पेरेंट क्लास था, उसके 2 चाइल्ड क्लास। नहीं, उसके 2 पेरेंट है, एक चाइल्ड है मल्टीपल में, ध्यान से देखो। ठीक है, मल्टीपल और जो हायरार्किकल है ना, कंप्लीटली ऑपोजिट टू मल्टीपल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मल्टीपल हैव 2 पेरेंट 1 चाइल्ड, हायरार्किकल हैव 1 पेरेंट एंड 2 चाइल्ड। दिस इज द मेन डिफरेंस। मल्टीपल हैव 2 बेस क्लास एंड 1 चाइल्ड, whereas hierarchical has 1 base class and 2 child. Clear है? Yes ma'am. So first base class is BCA. In the BCA class, under the access specifier public, I have one function that is named as show. Simply message print करवाया कि I'm a student of BCA, nothing else. उसके बाद आपने BCA जो parent class है उसको close कर दिया। किसी को कोई doubt? No ma'am. उसके बाद BCA क्लास के 2 चाइल्ड है ना, BCA1 एंड BCA2। तो पहली है BCA1, BCA1 हैज द पेरेंट BCA। तो हमने BCA को एक्सेस किया वाया द एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक। नाउ BCA1 क्लास हैव वन मेंबर फंक्शन नेम्ड एज void display अंडर द एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक। और void display member function में we are displaying the output like I'm a student of BCA1, और उसके बाद आपने जो child class BCA1 है उसको close कर दिया। ठीक है? नेक्स्ट देखो, सेकंड चाइल्ड था इसका BCA2। BCA2 इनहेरिट कर रही है BCA1 को वाया द BCA को वाया द एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक। BCA2 class has a member function named as void display1 and access specifier public. Under the public member function display1 message print करवाया I'm a student of BCA2, और जो BCA2 child class है it is closed. Any problem? No ma'am. Base class declare and define की, पहली child class BCA1 declare and define की, दूसरी child class BCA2 declare and define की। Now come to void main. In case of void main we have a 2 child classes. जैसे single inheritance में there is only a 1 child class. Multiple inheritance में आपके पास multiple levels होते हैं। तो in multi level inheritance always create the object of last derived class. लेकिन इस केस में दोनों child classes same level पे हैं, तो हम दोनों classes के objects को create किया। BCA1 का object है m और BCA2 के object का क्या name है? n। m डॉट शो को कॉल करोगे तो वो अपने पेरेंट क्लास का जो BCA क्लास का शो फंक्शन है वो कॉल होगा और आउटपुट आएगी आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BCA। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन जो है वो BCA1 क्लास का मेंबर फंक्शन है और m जो है वो भी BCA1 क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। तो हमने उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ उसी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल किया। तो m डॉट डिस्प्ले को कॉल करोगे तो आउटपुट क्या आएगी? स्टूडेंट ऑफ BCA1। गुड। उसके बाद n डॉट n सेकंड जो हमारे पास ड्राइव्ड क्लास थी दैट इज BCA2 एंड इट हैज ऑब्जेक्ट नेम्ड एज n।
BCA1 and BCA2 both are the children of BCA class. तो दोनों क्लासेस अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं। यस, पेरेंट को कॉल कर सकते हैं। नो मैटर कि आपके पास जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं, लेकिन जितनी भी चाइल्ड क्लासेस होंगी हर चाइल्ड अपने पेरेंट को अपने ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकता है। तो एन डॉट शो से कॉल करोगे तो आउटपुट आएगी आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BCA। अब देखो एन जो BCA2 क्लास है उसके मेंबर फंक्शन का नाम है display1 और NB किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? BCA2 का। तो हम उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ उसी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल किया, तो n डॉट display1 के साथ कॉल करोगे तो आउटपुट क्या आएगी? स्टूडेंट ऑफ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BCA2। यस मैम। गेट CH किया, void main की ब्रैकेट को क्लोज किया। एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो बोलो, हम डिस्कस कर ले इसको। नो मैम, क्लियर है मैम। ठीक है, यस मैम। चलो एक क्वेश्चन है हाँ बोलो बोलो। मैम, मैं कह रहा था कि जैसे वो आवाज नहीं होगी भाई साहब, बात करिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई। आवाज नहीं आ रही, आप जो भी हो ना, आपका बात आवाज नहीं आ रही आपकी ना, क्लियर नहीं आ रही। क्या पूछना चाहते हो आप? मैसेज कर लो। हाँ, उसमें चैट में लिख दो क्या क्वेश्चन है, क्या आपकी क्वेरी क्या है। ओके मैम, मैसेज अभी ऑडिबल है, दोबारा बोलने की कोशिश करो। मैम आवाज आ रही है? नाउ फाइन, अब आ रही है। मैम मैं कह रहा था जैसे हमें कुछ डिस्प्ले। The last type of inheritance is hybrid inheritance. Hybrid inheritance mean hybrid के नाम से क्लियर है, combination of more than one inheritance, जिसमें एक से ज्यादा inheritance का लेवल है, that is called hybrid inheritance. इसका मतलब है hybrid inheritance is the combination of hierarchical and multiple. Yes ma'am. Multiple. It is the combination of hierarchical and multiple inheritance. इसमें दो inheritance को use करेंगे तो एक inheritance बनेगा, that is called hybrid. और देखो इसको, इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। सब कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल, और कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड हायरार्किकल। दोनों ठीक है, ठीक है। कुछ बुक्स होंगी जिसमें दोनों का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। हाँ, दोनों को ठीक है। कुछ बुक्स आपको देंगी कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल और मल्टी लेवल, कुछ बुक्स कहेंगी कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल और मल्टीपल। मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, कुछ बुक्स मल्टी लेवल बोलती है, कुछ बुक्स हायरार्किकल बोलती है, ठीक है। मैंने सब कुछ यूज कर लिया है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? कोई डाउट है किसी का, कोई क्वेश्चन है? मैम मेरे पास जो बुक है ना मैम, इसमें मतलब दिया है मैम कि मैम इसमें मल्टीपल और हायरार्किकल और इनहेरिटेंस मतलब जो दिया है तीनों, बाकी उसमें तो वो तो एक आना ही है, मल्टीपल तो आना ही है। और कौन कौन से हैं? तीनों दिया है कॉम्बिनेशन करके। मल्टीपल और कौन सा शहजाद? मैम मल्टीपल मतलब मल्टीपल भी दिया है और ये हाँ, क्या कहते हैं हायरार्किकल भी दिया है, और बस दोनों ही और है। मल्टी लेवल भी दिया है मैम। हाँ, वही मैं बात बता रही हूँ ना कि आपको तीनों भी मिल सकते हैं। कहीं पे मल्टीपल और हायरार्किकल होगा, कहीं पे मल्टी लेवल और
क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल होगा। तो इट्स दोनों ठीक है। अगर डायग्राम में आप मल्टीपल और मल्टी लेवल शो करते हो फिर भी वो हाइब्रिड है। अगर डायग्राम में आप मल्टीपल और हायरार्किकल शो कर देते हो फिर भी वो आपका ठीक है। ठीक है, नाउ सी द डायग्राम। मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। यस मैम। हाइब्रिड आपने वैसे ही नाम ही सुना है ना, हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन हो। जी मैम। इसकी डायग्राम देखो। पहली जैसे क्लास है ए, तो दोनों कॉम्बिनेशन ठीक है, मल्टीपल, मल्टी लेवल, मल्टीपल और हायरार्किकल, आप दोनों में से कोई भी कर लो, नो प्रॉब्लम। पहले आई एम गोइंग टू डिजाइन अ मल्टी लेवल, क्लास ए, क्लास बी, कॉपी, ऑप्शन को पेस्ट, इसे दे रहा है। क्लास ए, क्लास बी, और इसमें करो ना कोई। हेलो ये भाई मूव करो ना, तुम आ रहे इसमें डाल दो क्लास डी। देखो, it is the combination in this case hybrid inheritance जो मैंने आपको शो करवाया है, hybrid inheritance, it is the combination of kindly mute कर लो प्लीज। मैम बहुत नॉइज हो रहा है। म्यूट योरसेल्फ। लवदेव सिंह मैम। So this is hybrid inheritance. It is the combination of multi-level. Multi-level means A से B, B से D, और मल्टी लेवल के साथ साथ दो बेस क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। वो कौन सा इनहेरिटेंस है जिसमें वी हैव टू बेस क्लासेस और वन चाइल्ड क्लास? इट इज मल्टीपल। मल्टीपल। So I'm taking hybrid inheritance as a combination of multiple and multi-level. ठीक है? Hybrid inheritance is the combination of multi-level. Multi-level is shown to all of you. A से B, B से D, and A, B, D multi-level है। और देखो A और C both are working as a parent class for a child class named as D. जो D क्लास है उसके दो पेरेंट क्लास है ना, वन इज B एंड सेकंड इज C. So this is the combination of multiple and multi-level. मल्टीपल एंड मल्टी लेवल। Yes, मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, multi-level.
So it is the combination of multi-level. Multi-level means more than one levels. Level A to B, level B to D. अब multiple कैसे हैं? Because we have two parent classes B and C. Both parent class has one child class that is named as D. Clear? मैम हायरार्किकल और ये मल्टी लेवल जो है सेम लग रहा है मेरे को तो। hierarchical ऐसा नहीं है। hierarchical में क्या है कि आपके पास पेरेंट एक है, चाइल्ड एक से ज्यादा है। चाइल्ड एक से ज्यादा है मैम। अब देखो, और इन केस ऑफ मल्टीपल वी हैव, हेडिंग डाल लो, प्रोग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ hive. This is the last type of inheritance. Program to show the working of inheritance. Header file लगा लो, hash include iostream .h hash include connew.h. Now, what is the name of the parent class? Tell me, what is the name of the parent class? A. मैम A, कैपिटल A आ गया, ठीक है। पेरेंट क्लास में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में सबसे पहले एक डेटा मेंबर है जिसका नाम है A। इस डेटा मेंबर की हम वैल्यू गेट करवाएंगे, तो उसके लिए आप गेट फंक्शन यूज कर लो। अब गेट फंक्शन भी मेरे को पब्लिक में ही चाहिए, तो मैंने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन साथ में एक बार ही पब्लिक लिखा है, ठीक है। वॉइड गेट में पहले मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो यूजर उसकी वैल्यू को एंटर करेगा। ए की वैल्यू एंटर कर दी, क्लास क्लोज कर दी। ठीक है, here is a public class, this class name is A। पहले हम मल्टी लेवल को इम्प्लीमेंट करेंगे और मल्टी लेवल के साथ साथ वी हैव टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल ऑल्सो। डन? यस मैम। नेक्स्ट क्लास कौन सी अब डिक्लेयर करें? मैम बी। बी क्लास, B, बी कौन सी क्लास से इनहेरिट करें? मैम ए से। ए से, वेरी गुड। बी के पब्लिक में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे int b, और देयर इज अ वन इनपुट फंक्शन void get1। void get1 में से हम b की वैल्यू यूजर से एंटर करवाएंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ b, सील b, void get की ब्रैकेट क्लोज, क्लास क्लोज। ठीक है, इसको लिख लो। यस मैम, हो गया। हो गया? यस मैम। अब ए बी और तीसरी क्लास कौन सी आ रही है हमारे पास? मैम डी। लेकिन अगर हम लेवल के अकॉर्डिंग चले, ए अल्फाबेटिकली बी और बी के बाद थर्ड क्लास कौन सी है? मैम डी। सी। सी होगा मैम, अल्फाबेट। अगर हम अल्फाबेटिकली चले, ए ओके मैम, ओके। बी और उसके बाद सी। सी।
सी स्टैंड अलोन क्लास है कि जहाँ किसी और क्लास से ड्राइव हो रही है, कि अकेली ही है, स्टैंड अलोन है? मैम ड्राइव हो रही है डी से। मैम ड्राइव हो रही है बी से। अच्छे से देखो, अच्छे से डायग्राम देखो सी की। मैम कहीं से ड्राइव नहीं हो रही है मैम, उससे ड्राइव हो रही है डी। हाँ, सी कहीं मैम डी से हो रही है। सी क्लास को हम किसी भी पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं कि नहीं, बस इतना आंसर करो। नहीं मैम, नहीं कर रहे। नहीं कर रहे ना, वो एक अकेली बेस क्लास है, स्टैंड अलोन क्लास है ना। हाँ जी मैम। हाँ, तो उसकी कोडिंग में सिर्फ उसका नाम ही आएगा, वो कहीं से भी इनहेरिट नहीं हो रही, ठीक है। नहीं मैम। चलो, उसके पब्लिक में public variable declare named as C. There is a one input function void get 2, it's the name. Message print cout. So enter the value of C. C in C. Curly bracket of void get 2 closed, class is closed. Done? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्लास कौन सी ड्राइव करें? ए होगी, बी होगी, सी होगी, नेक्स्ट डी। डी। डी मैम। ए भी होगी, बी होगी, सी। नाउ कम टू क्लास डी। क्लास डी, अब बताओ कौन कौन सी क्लास से वो इनहेरिट हो रही है? सी से हो रही है मैम। सी से, बी से भी और डी से भी और नहीं बी से और सी से मैम। क्लास बी से और क्लास सी से मैम। सी से। क्लियर? So when we have more than 2 parent class and 1 child class, that is called multiple inheritance. Public one variable named as D. One member function named as multiply, MUL. It means multiply. MUL का मतलब है multiply. Multiply में call the all member function of different classes. First is get. अब मेरे को एक बात बताओ, get function में किसकी वैल्यू आप get करोगे, किस वेरिएबल की? इन गेट फंक्शन कौन से वेरिएबल की हम वैल्यू एंटर करवा रहे हैं? मैम ए का करवा रहे हैं। ए के, तो हमने ए की वैल्यू गेट की। गेट 1 में बी मैम। बी। और गेट 2 में मैम सी की। सी की। चलो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लाई का है ए कॉमा बी कॉमा सी। ए इंटू बी इंटू सी मल्टीपल फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज की और ड्राइव क्लास डी को बंद किया। लिख लो अच्छे से।
डन? यस मैम डन। क्लास ड्राइव डी क्लास है, वो एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक बी और सी से ड्राइव्ड है। क्लास डी के पब्लिक में वेरिएबल डी डिक्लेयर किया और एक मेंबर फंक्शन है हमारे पास मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है एक से ज्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करना। अब नंबर, जो नंबर मैंने इनपुट करवाए वो एक गेट में है, तो हमने मेंबर फंक्शन में दूसरे, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड मेंबर फंक्शनिंग। एक मेंबर फंक्शन मल्टीपल है, उसके अंदर मैंने 3 और मेंबर फंक्शंस कॉल किए ना, गेट, गेट वन और गेट टू। यस मैम। जो गेट मेंबर फंक्शन है वो है ए क्लास का, जो गेट वन है वो बी क्लास का, और जो गेट टू है वो सी क्लास का। तो गेट से मेरे पास ए आएगी, गेट वन से बी आएगी, गेट टू से सी आएगी। हम तीनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए इंटू बी इंटू सी। जब गेट पे जाएगा तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो यूजर ए की वैल्यू एंटर करेगा। गेट वन पे एंटर द वैल्यू ऑफ बी, यूजर विल एंटर द वैल्यू ऑफ बी। एंड गेट टू पे एंटर द वैल्यू ऑफ सी, यूजर विल एंटर द वैल्यू ऑफ सी। a into b into c, तीनों की जो वैल्यू, द वैल्यू दैट इज एंटर्ड बाय द यूजर विल बी मल्टीप्लाइड, a into b into c, तीनों मल्टीप्लाई होंगे और उसके बाद आपको इसकी आउटपुट जनरेट होगी। नाउ सी void main पे आओ, void main CLRSCR। नाउ टेल मी किस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करें? बोलो। इसमें 2 क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना? नहीं, लास्ट ड्राइव्ड क्लास कौन सी है, अच्छे से देख लो। लास्ट तो मैम डी है। बस, तो दो एक ही क्लास है ना चाइल्ड। देखो वो जो हायरार्किकल थी उसमें दोनों सेम लेवल पे थी। अगर डी के साथ कोई और भी क्लास होती ना, चाइल्ड डी और ई, फिर हम दोनों चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते। लेकिन इस केस में लास्ट चाइल्ड क्लास कौन सी है आपकी? ये लेवल वाली है, मल्टी लेवल है ना? हाँ तो हाँ तो सबसे लास्ट हमारे पास है डी है मैम। डी के ऑब्जेक्ट, डी का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया D1। ठीक है, D1 से सिर्फ एक ही मेंबर कॉल करेंगे, डेट इज कॉल्ड MUL, मल्टीपल। एक ही फंक्शन कॉल करेंगे बिकॉज मल्टीपल फंक्शन में मैं ऑलरेडी बाकी मेंबर फंक्शन कॉल कर चुकी हूँ, गेट वन और गेट टू, टू गेट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। तो whenever जब आप कॉल करोगे D1 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपको आउटपुट मिलेगी A into B into C। लेट अस सपोज कि A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है और C की वैल्यू 30 है। तो D1 डॉट मल्टीप्लाई जब कॉल करोगे तो क्या आउटपुट आएगी? मैम ए बी सी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हाँ आएगा। तो वो बताओ ना मेरे को। A की वैल्यू लेट अस सपोज 10 है, लिख लो कॉपी पे, A 10 है, B 20 है और C 30 है। तो D1 डॉट मल्टीप्लाई जब कॉल करोगे तो क्या आउटपुट आएगी? A is equal to 10, लेट अस सपोज मैंने एंटर करवा दिया। इसमें और B की इनपुट मैंने दी है 20, C की इनपुट मैंने दी है 30। अब बताओ कि जब हम तो D1 डॉट मल्टीप्लाई जब 6000 आएगा मैम। 6000 के 6000 मैम 6000 आएगा। 6000 आएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो इसकी आउटपुट आएगी 6000। वेरी गुड। ठीक है, तो A is equal to 10, B is equal to 20 and C is equal to 30। तो इन दैट केस हम सारी मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे, गेट को, गेट वन को, गेट टू को, बिकॉज ऑल दीज मेंबर फंक्शन इज ऑलरेडी कॉल्ड इनटू मल्टीपल मेंबर फंक्शन। मैंने तो मल्टीपल में ही मैंने कॉल करके वो तीनों मेंबर फंक्शन से A की वैल्यू गेट की, B की वैल्यू गेट की, C की वैल्यू गेट की। तीनों की वैल्यू गेट करने के बाद तीनों को जब मल्टीप्लाई करवाया, उसका आंसर मल्टीप्लाई मेंबर फंक्शन में है। तो मैंने जो लास्ट ड्राइव्ड क्लास D है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया D1 और D1 से मैंने मेंबर फंक्शन मल्टीपल को कॉल किया, तो आपके पास 600 आउटपुट आएगी। क्लियर टू ऑल? यस मैम। 6000 तो सॉरी 6000, यस 6000 आपके पास आउटपुट आएगी, राइट? यस मैम।
Any student have any problem? Clear to everyone? ओके मैम, अब क्लियर है मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू मैम। joining the class. See you at 2:10 p.m. Okay.